One of India's leading telecom service provider, Vodafone Idea Limited, has been dedicated towards giving back to the society. Touching and improving millions of lives, we look at two of such heartwarming initiatives, Jadoo Ginni Ka and Rudi Sandesha Vyavhar from Gujarat. Vodafone Idea, through its CSR initiatives, takes transformative projects in the domain of education, women empowerment and livelihood. In the area of education, we have taken financial literacy through our Jadoo Ginni Ka program, strong partnership and use of technology, which has allowed in a very short time frame for us to reach 10 million people, more than half of them women in rural India, to become financially literate. In the Seva project, we have actually worked with our partner to create nearly 5,000 Rudi Bains who are village entrepreneurs, doubling their income and impacting 1.4 lakh people in many states. All of these are built on a strong platform of technology and partnership and sustainable project execution. Seva, which is a trade union registered in 1972, is an organization of poor, self-employed women workers. According to the founder of Seva, Elabain, after political independence, there was a need of economic self-reliance for rural population to flourish. Supported by Vodafone Idea Limited, Rudi, which is short for Rural Distribution Network, provides multiple employment opportunities and builds up an integrated food value chain in order to enhance the efficiency of agricultural activities. नमस्ते, मेरा नाम पूजा बहन है और मैं 11 साल से जुड़ी हुई हूँ और खेड़ा जिला के पीच गांव की हूँ। अभी मैं रूडी मार्केटिंग का काम कर रही हूँ। सेवा में मैं जब जुड़ी नहीं हुई तो मैं खेत में काम करने के लिए जाती थी, तो खेत में हमें रोज़गारी नहीं मिलती थी। कुछ दिन मिलती थी और कुछ दिन नहीं मिलती थी। और अभी मैं सेवा में तब जुड़ी और अभी तो मैं मार्केटिंग का काम कर रही हूँ, तो मेरा काम निकल जाता है। मेरा हस्बैंड बीमार है, अभी डायबिटीज़ है उसको, तो मैं उसकी भी दवा कर रही हूँ, मेरे बच्चे को पढ़ा रही हूँ। To further increase this efficiency of stock ordering process, a mobile management information system called Rudi Sandesha Vyavhar or RSV was also introduced and improved by Vodafone Idea Limited. रूडी संदेशा व्यवहार की बात करूँ तो वो पहले स्मॉल वाले फ़ोन में थी, तो बहनों को जो भी ऑर्डर चाहिए वो मैसेज करती थी, 1 2 3 4 ऐसे करके करती थी, तो वो एप्लीकेशन काम नहीं आई। फिर दूसरी एप्लीकेशन आई, उसमें भी ऐसा था कि इंग्लिश में थी तो बहनों को नहीं आती थी। तो फिर बहनों ने यहाँ पे बोला कि ये नहीं पाती है, फिर हमने वोडाफोन से बात की और तीसरी एप्लीकेशन आई, उसमें जो इंग्लिश नाम थे वो बहनों को नहीं आते थे, इसलिए हमने फिर वोडाफोन से बात करके जो चित्र रखवाए, जैसे चिली पाउडर है तो चिली का लाल कलर होता है तो लाल, हल्दी का पीला होता है तो हल्दी का, ऐसे अजवाइन का चित्र रखवाया, ऐसे बहनों को चित्र रख के एप्लीकेशन तैयार की। अभी बहनों को अच्छी तरह आ गया है और वो एप्लीकेशन से ऑर्डर करती है। इस एप्लीकेशन से बहनों को ये फ़ायदा हुआ है कि पहले जब बहनें मोबाइल उनके पास नहीं था तब सेंटर में आती थी, रूडी सेंटर में, और आके उनको जितना सामान चाहिए था वो लेके जाती थी। और आती थी तो हमारे पास कभी कभी सामान भी नहीं होता था तो उनको वापस जाना पड़ता था। अभी ये वोडाफोन का जो एप्लीकेशन आया है रूडी संदेशा व्यवहार, उससे वो मैसेज करती है ताकि हमारे पास जो सामान नहीं होता है वो हम लाके रखते हैं और उनको तैयार करके दे देते हैं, वरना रूट प्लान करके उनको भेज देते हैं, तो उनका समय बचता है और पैसे भी बचते हैं। Another successfully running initiative by Vodafone Idea Limited is the Jadoo Ginni Ka, a financial literacy program running since October 2017 in 16 states of India, which empowers people from various diaspora on the basic concepts of financial management.
हम लोग इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स जो है भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें जितने भी सारी भारत सरकार जो योजनाएं चलाती हैं उनको जो हम लोग का ये मुख्य उद्देश्य है कि वो सारे लोगों तक हमारे जितने भी जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, इसमें हमारी टारगेट ऑडियंस जो है यूथ है, एमएसएमई सेक्टर्स लोग हैं और किसान हैं, महिलाएँ हैं, 15 साल के ऊपर जितने भी यूथ हैं उन सभी लोगों का जो हमारी ये टारगेट ऑडियंस है, इन सभी लोगों तक हमको जो है अपनी इन सारी जानकारी को पहुंचाना है। इसी के माध्यम से ये हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी चालू हुआ है गली गली गांव गांव, इसके माध्यम से हमारी जो एक वैन है वो वैन जो है जिसमें कि 7 राज्यों में जो जा रही है वैन जा रही है और ये वैन भी वहाँ पर लोगों को जागरूक कर रही है और उसमें भी वैन के माध्यम से हम लोग गांव में जाते हैं पंचायत स्तर पे और पंचायत स्तर पे जाते हैं, वहाँ पर हमको वैन में जो है हमारे ट्रेनर्स साथ में होते हैं, वो लोग ट्रेनर जो ट्रेनिंग देते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी बताते हैं, लोगों को इस तरीके से हम लोग जागरूक कर रहे हैं। ऐसे 2 भाग कर दीजिए आप। एक साइड लिखिए अपनी आवक, अपने बच्चे को 10 रुपया दिया हो या 50 रुपया का राशन लाया हो वो लिखिए। इसमें जो हमारा ये जो मॉडल है वो मॉडल इस तरीका है कि इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जो है ये हमारा कास्केड मॉडल है। कास्केड मॉडल का मतलब ये है कि हम इसमें सबसे पहले हम लोग एक ट्रेनिंग देते हैं जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है और ब्लॉक लेवल में हम लोग इसको ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि हमने किसी डिस्ट्रिक्ट में गए, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के थ्रू हमने वहाँ के जितने भी ब्लॉक लेवल पे एसएचजीज के मेंबर्स हुए या फिर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं हम, तो इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें स्टूडेंट्स को हम लोग पहले ट्रेन करते हैं कि हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी में हमारा 9 आवर का पूरा शेड्यूल है। इसमें हमारे पास जो है वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ के थ्रू हम इनको बताते हैं, उनको सिखाते हैं। हमारे पास एक्टिविटीज़ कार्ड हैं, जादूगिरनी के एक्टिविटीज़ कार्ड है, उनको हम नीड्स एंड वांट्स के बीच में डिफरेंस करना बताते हैं। और इसके अलावा इसमें जो है हम लोग ये भी बताते हैं कि कैसे हम लोग एक फाइनेंशियल डायरी जो है हम लोग बजट की प्रॉपर प्लानिंग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम जो है इनकम और एक्सपेंडिचर्स का एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे गांव में वित्तीय साक्षरता मिशन के अनुरूप हमको आय व्यय बचत के बारे में बताया था। उन्होंने हमें बताया तो उसके हिसाब से हमने अपने इन डायरी बनाकर और इन वित्तीय डायरी के द्वारा सब लिखा पढ़त करके आय व्यय के बारे में लिख करके और उससे हमने अपनी बचत करना आरंभ किया। जो मोदी जी की योजना चली थी, जैसे 330 जीवन ज्योति की 330 वाली योजना है और जो 12 रुपये साला वाली योजना है, जो LIC की योजना है, ये योजना हमने अपने परिवार में अपने घर वाले सदस्यों को बता करके हमने खुलवाई और उससे हमने प्रॉफिट लिया और उससे हमें आगे जाके भविष्य में हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। खर्चे कम हो जाएंगे और हमारी बचत होना चालू हो जाएगी। तो हम अपनी बचत कहाँ जमा करनी है? पहले तो नंबर अपने घर में ही लागू किया। जैसे जो प्रधानमंत्री जो योजनाएं है ना, जीवन ज्योति बीमा योजना है, मैंने अपना करवाया, अपने हस्बैंड का करवाया। और उसके बाद मैं समूह चलाती हूँ, मैंने अपनी महिलाओं को बताया, मैंने अपने समूह की महिलाओं को बताया और उनको डायरी बनाना बताया। जैसे कि डायरी बनाओ, डायरी में जैसे कि हमारे फालतू खर्चे आ जाते हैं, हमारी आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो मैंने अपनी महिलाओं को जागरूक किया है कि डायरी बनाने के अपने खर्चे लिखो, जिसमें कि हम डायरी बना लेंगे तो हमें उसने हमें ज़रूरत की और नहीं ज़रूरत के खर्चों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो मेरी महिलाओं ने डायरी बनाने चालू कर दी है, जिससे मेरे समूह की महिला जागरूक हुई हैं। मैं बाहर आती जाती हूँ, मैंने उनको भी जागरूक किया, वो भी अपने गांव में आस पास है, रिश्तेदारों में इसके बारे में जानकारी देती हैं। जागरूक गिनती के प्रोग्राम से मेरे पर प्रभाव पड़ा। मैं जो कहती हूँ कि मेरे पूरे गाँव में प्रभाव पड़े, जैसे मैं बाहर निकल कर जाऊँ तो उन पर भी प्रभाव पड़े।